Welcome to Boost ISPCS. Next topic is pollution and disease. There are various type of disease generated by pollution in human and plants both. 1 in 8 death in India in 2017 was attributed to the air pollution. अभी भी एयर पोल्यूशन मेजर कॉज है कई सारे डेथ का which contributes to more disease burden than tobacco use. Automobile use lead as an anti-knocking agent. Lead when released in the air with exhaust are most toxic. Lead affect the nervous system, brain, digestive system of the human body. Cadmium works as respiratory poison. It becomes the main factor of the heart disease. Cadmium heart disease का main factor बनता है by increasing blood sugar pressure. Excess of the cadmium in drinking water leads to इताई and ouch disease. याद रखिएगा कैडमियम से इताई और ouch डिसीज होता है. It leads to severe pain in bones and joints. Drinking of contaminated water mixed with mercury leads to Minamata disease. An amalgam of mercury present in the wastewater get converted into toxic matter methyl mercury. Symptoms include ataxia, numbness in the hands and feet, blood, eyes, general muscles weakness, narrowing of the field vision, damage to hearing and speech. Fluoride pollution is responsible for the knock-knee syndrome. Fluoride has affinity for the calcium and get accumulated in the bones, resulting pain in bones and joints. आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स एंड नीस, मतलब ये आपका जो फ्लोराइड है इसके थ्रू नॉक-नी डिसीज सिंड्रोम होता है जिसमें क्या है बोन्स, जॉइंट और आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द लेग्स, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोल स्मोक एंड स्टैंडर्ड ऑफ द डर्टीनेस कमिंग आउट फ्रॉम द मोटर व्हीकल and other factors. In 1987, sound pollution was also included in this act. जैसे monosodium glutamate is a sodium salt of the glutamic acid. It is used in increasing taste of the Chinese fast food. एक्चुअली आपने कई सारे चिप्स के पैकेट भी देखे होंगे, उनमें भी ये होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और जिसमें ये ज़्यादा होता है उसको आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए. एस्बेस्टस इज पॉइजनस मटीरियल हुज डस्ट कुड काज लंग कैंसर. एस्बेस्टस से आपका लंग कैंसर होता है. मरकरी अफेक्ट द ह्यूमन स्टोमक. मरकरी डायरेक्टली ह्यूमन स्टोमक को अफेक्ट करती है. कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेसेस द ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम एंड लीड पॉइजनिंग. कार्बन मोनोऑक्साइड से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ब्लड ऑक्सीजन में कब उग चलेगी और कब आपको नुकसान करेगी. आपने देखा होगा कई लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से रात में अंगीठी जला के सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते क्योंकि पता ही नहीं चलता उनको. Nitrogen oxides can produce cancer in human body. Dust particle causing breathing related disease. Carbon monoxide, oxides of the sulfur, nitric oxide, carbon dioxide, all 4 major pollutants are from the steel industries in the plant. ये लेकिन स्टील इंडस्ट्री से और भी चीज़ें निकलती हैं. Aflatoxin are poisonous and cancer causing chemicals producing by certain molds which grow in soil, decaying vegetation and grain. They are regularly found in improperly stored staple commodities and such as cassava, chilies, peppers, corns, cotton seed, millet, peanut, rice, wheat. इन सब में अब देन आगे देखते हैं. Persistent organic pollutant are organic compounds that are resistant to environmental degradation through chemical, biological and photolytic process. Some brominated flame retardants are included in the list of the persistent organic pollutants. Then nanoparticles pollute water, soil and air. Nanoparticles of the zinc oxide, titanium oxide produce free radicals which can be harmful. Respirable microparticles are those particles which can enter the lungs during the respiration. The floating microparticles of the less देन 0.5 माइक्रो कैन नॉट बी, माइक्रोन इसको बोलते हैं, 0.5 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल है. ओके. कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाई नसल मेम्ब्रेन लीडिंग टू दियर इंट्रेंस इन द लंग्स कॉजिंग वेरियस डिसीज. एक्चुअली जो ज़्यादा छोटे पार्टिकल है ना, जो आपकी नसल मेम्ब्रेन है उससे रुकते नहीं है, वो अंदर चले जाते हैं. वाइल द पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 से 3 माइक्रोन आर स्टॉप्ड बाई नसल मेम्ब्रेन एंड कुड नॉट इंटर द लंग्स. बेसिकली जो 0.5 माइक्रोन से कम है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली. ओके. देन क्वेश्चन देखते हैं.
मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, कौन सा है? लेड। देखो कितनी बार, 6 में 2 बार आया, 9, 6 में 3 बार, उसके बाद 9 में। लेड इंजेस्टेड ऑन inhaled is a health hazard. Okay, after the addition of the lead to the petrol has been banned, what still are the source of the lead poisoning? देखो अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि लेड पॉइजनिंग का और सोर्स क्या है, ठीक है। ऐसे केस में आप जनरली डी लगाते हो, बट यहाँ पे डी सही नहीं है, आपको स्मेल्टिंग यूनिट एक सही है। देखो पेन पेंसिल, अगर पेन पेंसिल में लेड नुकसान करने वाला रहेगा तो हमारे बच्चों और जो मतलब जनरल यूज की चीज़ उसमें नुकसान करेगा, तो ये चीज़ तो नहीं होगा। ओके, पहला सही है। उसके बाद पेंट, हाँ पेंट में होता है, इसमें कोई वैसा। अब हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक में अगर होगा तो आप तो डेली यूज कर रहे हो, ये बंद ही हो जाएंगे। तो 2-4 मतलब बेसिक डोमेस्टिक यूज की चीज़ें हैं जो एकदम बेसिक हर कोई यूज कर रहा है, तो ये नहीं है। बाकी 1-3 तो है, तो इसमें 1-3 ही ऑप्शन करेक्ट है, 2-4 उसका गलत है। ओके, देन आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? इसमें फ्लोराइड आयन से इंडाइजेशन नहीं हो, जैसे मरकरी से मिनीमाता, कैडमियम से इथाई, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो फ्लोराइड से आपका दूसरा कुछ डिसीज होता है, जैसे आपको मतलब पैर वाला बोन वगैरह हुआ था ना, अफेक्ट द टीथ, बोन, ऑर्गन्स, ठीक है, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, इसको इफेक्ट करता है। देन अगला, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच करना है इसमें अगेन, कौन सा करेक्ट मैच है वो देखना है, करेक्टली मैच देखना है, ठीक है। जैसे लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक में आपका लेड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड ये भी होता है, चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा इसको। इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच लिस्ट ए और बी दोनों को मैच करना है। यहाँ पर देखिए एयर पोल्यूटेंट है, यहाँ पार्ट अफेक्टेड है, आपको करेक्ट आंसर इसमें देखना है। अब जैसे इसमें देखेंगे आपका एस्बेस्टस है, ठीक है, एस्बेस्टस किसके लिए है? आप देखेंगे आपके डायरेक्टली लंग को इफेक्ट करता है, ए का 3। ओके, देन लेड, लेड का कहाँ इफेक्ट होता है? स्टोमक। ओके, देन मरकरी, आपका मरकरी कहाँ इफेक्ट करता है? नहीं, लेड आपका करता है ब्रेन में, डायरेक्टली ब्रेन में करता है। अब मरकरी जो है, मरकरी आपका स्टमक में करता है, मरकरी स्टमक में। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ब्लड स्ट्रीम को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 3124। ए का लंग हो गया, और लेड का ब्रेन हो गया, मरकरी का स्टमक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्लड स्ट्रीम हो गया। ओके, देन अगला सेम अगेन वही मैच ही करना है, तो यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं, क्यों टाइम उतना वेस्ट करें। देखिए पोल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड डैमेज टू लिवर एंड किडनी, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन कैंसर, सॉइल पार्टिकल एलिमेंट रिलेटेड ब्रीदिंग, लेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको इफेक्ट करता है। वैसे भी ये एकदम डायरेक्टली सारे सही दिए गए थे इस 2008 के पेपर में। यूपीपीसीएस ऐसा भी करता है कि सारे के सारे सही दे देता कई बार। विच आर द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, कौन से हैं? देखिए स्टील इंडस्ट्री की बात की तो वो तो सारे रिलीज करेगी, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप किसी चीज़ को निगेट नहीं कर सकते कि ये पोल्यूटेंट नहीं होगा, लगभग सारे हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द स्किरिल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन नोन एज द एफ्लाटोफिन्स which are not destroyed by the normal cooking process. एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाई, किससे होता है? माउल्स, ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस नहीं, प्रोटोजोअस नहीं, माउल से होगा। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक मैट्रिसेस एंड अपहोल्स्टरी। उसके बाद वाई इज देयर सम कंसर्न अबाउट देयर यूज, इसमें दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट, बेसिक सा सही है, हाईली रेजिस्टेंट हो तभी नुकसान कर रहा है। दे आर एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये भी बात सही, तभी तो नुकसान है, तो एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन, द साइज ऑफ द रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स RSPM इन द एयर, उसकी साइज क्या होगी जो हमें नुकसान करता है? बेसिक लेस देन 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोन जिसको बोलते हैं, लेस देन 5 माइक्रोन। ओके,
देखो अगर बड़ी साइज का है तो हमारी नसल मेम्ब्रेन उसको रोक लेगी, लेकिन छोटी साइज को नहीं रोक पाएगी, इसलिए नुकसान करता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है. देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स of some chemical elements that are used by the industry in some manufacture of various product. Why? क्यों? They can accumulate in the environment and contaminate water and soil. बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये नुकसान करते हैं नैनो पार्टिकल, यही है दिक्कत. They can enter food chain, ये भी इशू है. They can trigger the production of the free radicals, ये भी इशू है. तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है 1 2 3. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन का, जो मिसलिनियस टॉपिक उसको देखते हैं. जैसे एस्बेस्टोसिस इज ए क्रोनिक लंग डिसीज कॉज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टस फाइबर. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दिस फाइबर कैन कॉज लंग टिश्यू स्केरिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. इट कैन कॉज मीसोथेलियोमा कैंसर डिसीज. अब नेक्स्ट ला नीना रिप्रेजेंट पीरियड्स ऑफ द बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक. Mustard seed can be adulterated by ergimon seeds. Ergimon mexicana is a species of poppy found in Mexico. ठीक है, तो ये याद रखना, एर्गीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाया जाएगा. एडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल कैन कॉज एपिडेमिक ड्रॉस्पी. ओके. देन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट. ये कौन सा है? देखिए इसमें सीवेज है करेक्ट ऑप्शन. ओके. बाकी सारे नहीं है, जैसे एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक नहीं है, सीवेज है. सीवेज है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, रेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. मतलब सीवेज नॉर्मली बायोडिग्रेड हो जाएगा, बाकी दूसरे जो है नहीं हो पाएंगे. विच वाज द सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस कोल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया इन जनवरी 2012. क्या है इसमें से? लानीना. लानीना आया था, इससे मतलब क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हुआ था, मतलब रेन अफेक्ट हुई थी बहुत ज़्यादा. Which of the following is used as an adulterant of an mustard seed? कौन सा इसमें से? Ergimon seed. Then incinerators are used for which of the following? Burning waste. In the context of which of the following are terms pyrolysis and plasma gasification method? Waste to energy technology. Okay. ये दोबारा एग्जाम में आ सकता है. पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेथड क्या है? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी. कंसिडर द फॉलोइंग: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर. विच ऑफ द अबव इज आर एमिशन फ्रॉम कोल कंबशन इन थर्मल पावर प्लांट. देखो ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि आप किसी चीज़ को निगेट नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ नहीं होगा. ओके. देन मैच करना है आपको, लिस्ट ए लिस्ट टू, दो लिस्ट हैं में आपको मैच करना है. तो बेसिक हम देख लेते हैं सीधा. एसिड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल स्मोक, अल्ट्रा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फोटोकेमिकल स्मोक, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. कॉम्बिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड. हीमोग्लोबिन का जहां भी जिक्र है कार्बन मोनोऑक्साइड आप मान सकते हैं. डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके. देन अगला क्वेश्चन, in India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? Bioremedial waste, ये नहीं है. Recycled plastic waste, ये भी नहीं है. The e-waste management rules 2011, ये सही है, e-waste से रिलेटेड है. e-waste management rule 2011, extended producer responsibility अभी रिसेंट का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2011 का ही है. Then R2 code for of practices constitute a टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ द. किसके? देखो R2 मतलब उसमें दो बार आर है. ठीक है, दो बार आर कहाँ है? रिसाइकल, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग. ठीक है, मतलब रिसाइकिल आपको करना है. एक ये, दूसरा दो आर यहाँ है, और तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे, यहाँ भी नहीं है. रिसाइकलिंग में ये, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग एक तरीके से, ये ए ऑप्शन करेक्ट है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू यूज of the hydrogen enriched CNG as fuel for the buses in the public transport, consider the following statement. अब इसमें देखेंगे, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ द HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन. देखो ये पॉइंट आपका, द मेन HCNG एलिमिनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड को एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल, रिडक्शन पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन गलत है.
एच सी एन जी एज ए फ्यूल रिड्यूसेस, हाँ ये बात सही है, रिड्यूस, अगर यहाँ भी रिड्यूस बोलता तो हम सही मान लेते, रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, एकदम बात सही है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सी एन जी एज ए फ्यूल फॉर बसेस, देखो ये बात सही है, 1/5 उसमें ब्लेंड करेंगे, इसमें मतलब फिक्स नहीं, 1/5 लगभग करेंगे। एच सी एन जी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सी एन जी, नहीं भाई, कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो नई टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती तो होगी नहीं, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, तो एक्सपेंसिव तो होगी, लेस एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, ये गलत है, तो आपका 2 3 करेक्ट ऑप्शन है। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट the use of Cyrus cloud thinning technique and the injection of the sulfate aerosol into the stratosphere, okay, then इसमें reducing the global warming, ये आपका मेन पॉइंट है, बाकी तो सारी इधर उधर के ऑप्शन है, जैसे क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल देन नहीं, ये सब नहीं, रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड ये सब नहीं, ओके। देन अगला, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पोल्यूशन फ्री बाई रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाई व्हिच ईयर, देखो ये ईयर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इन्होंने 2040 का वैसे दे रखा है बिहार पोल्यूशन फ्री फ्रॉम 2040, बट इनमें कोई आसपास का ऑप्शन था नहीं, इसलिए डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है।